Good evening, my students. Today I will take up the globalization. Under this globalization, as such, the word tells us what the word tells the globalization. Globalization means the integrated economy. Means in other words, integration of economy of a country with the world economy. जब हम world economy के साथ integrate करते हैं, that means the whole world becomes one single market. Any country can buy anything and sell anything in any foreign countries, right? So इसमें हम सबसे पहले लेंगे, we will take the outsourcing, right? Outsourcing means what? Outsourcing means let's take the example like the call centers. All the call centers are there in India and in China because we have very cheap labor, right? All the American call centers are going on in India. Even the जो पार्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी? दैट इज़ ओनली इन द इंडिया विद द ग्लोबलाइजेशन, राइट? नेक्स्ट इज यहाँ पे हम बात करेंगे WTO के. WTO दैट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंडेड इन 1995. ऑब्वियस है 1995 में उसको किया गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. जो वहाँ पे एक गैप टर्म आता है, दैट इज़ अ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ इन 1948 विद 23 countries and India is one of the member. इस्टेब्लिश किया गया और इसमें मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वॉज डन. मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जहाँ पर क्या किया गया, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया. क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कम किया गया. एंड जो टैरिफ्स थे, ज़्यादा टैरिफ्स लगाए जाते थे इंपोर्ट्स को, उनको बंद किया गया सो दैट ईच एंड एवरी कंट्री कैन have equal opportunity to sell and buy the products from other countries. So this was established. This is the globalization, and with the globalization many multilateral companies came into India. Multinational companies come into India, like you all know about the FDI, that is the foreign direct investment. We have many big malls like metros and these types of things we have right now in India. That is only because of the globalization. Before the globalization we have only few products in India. There is no variety in India, right? Like take the example, we have, if we say about the automobiles के नाम पर हमारे पास Fiat थी, Ambassador थी, and these are the only few cars we have. But after implementing the new economic policy and with the introduction of the globalization, we have variety of cars, right? And as the other one is that before 1990 or before introducing the globalization, क्या था हमारे पास? only we have thumbs up and one more Campa Cola. I don't know whether you will you know or not, but in our time, yes, it was there. But after implementing the new economic policy, introduction of the globalization, there are a variety of cold drinks. We have Campa, beside Campa Cola and this Thumbs Up, we have Fanta, Coke, Mirinda, extra and extra. I can't say how many drinks are there. So it means what? We get many things. लेकिन किस चीज़ के ऊपर? डेफिनेटली इसमें क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ. दे हैव इनकर्ड लॉसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी चीप. ग्लोबल मार्केट में वो बहुत चीप था एंड द क्वालिटी इज़ गुड. सो जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक थी. सो दिस इज कम्स अंडर द ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स. जो हमने रिफॉर्म्स किए उसमें इंडियन इकोनॉमी किस तरह
थी हमारी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द GDP. द GDP increases. Yes, of course the GDP increases. But how? कैसे increase हुई है? That is only in the service sector. जो हमारा service sector था वो increase हुआ, but not the agriculture and not the industry. जो agriculture था वो 3.6 से कहाँ पर पहुँच गया? 1.5. It reduces, whereas the industry 7.1 to 3.6. ये दोनों ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे इसका बहुत फ़र्क पड़ा, एडवर्स अफेक्ट पड़ा. वेयर इज़ जो सर्विस सेक्टर था वो हमारा इंक्रीज हुआ फ्रॉम 6.7 टू 8.1%. नेक्स्ट आता है हाउ इट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. नो डाउट देर इज़ अ इंक्रीज इन द ग्रोथ. हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो रही थी, बट जो एम्प्लॉयमेंट थी, जो ग्रोथ हमारी बढ़ रही थी वो सफिशिएंट नहीं थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया विद द ग्रोथ पैटर्न. ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन फिर भी इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट नहीं कर रही थी. थर्ड, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. विद द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर क्या अफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे? ऐसा चाहे वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा दो चीज़ों पे, इंडस्ट्री पे एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चर. जब रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स में सबसे पहला आया रिमूवल ऑफ द सब्सिडी. अब सब्सिडी जब अगर हम रिमूव कर देंगे तो व्हाट will happen? It adversely affects the small and the marginal farmers. They cannot buy the good variety of seeds and chemicals and fertilizers because these are very high in rate. Next is the removal of minimum support price. जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो भी रिड्यूस कर दी गई या कम कर दी गई या पूरी तरह हटा दी गई. रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. व्हेन देयर इज़ अ रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते मिलेंगे बाहर के, वे जो सब सस्ते मिलेंगे तो उससे क्या होगा? ऑब्वियस है, इट अफेक्ट्स द इंडियन एग्रीकल्चर. लिफ्टिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. एक क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें ग्लोबलाइजेशन के अंडर हटा दिया गया था. जब ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं तो जितना भी है वो हम इम्पोर्ट कुछ भी करवा सकते हैं, तो उससे भी हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट किया. नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी. जो एग्रीकल्चर में थी, एग्रीकल्चर में भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अपनाई गई. दैट मीन्स रेदर देन हैविंग द डोमेस्टिक क्रॉप्स, ज़्यादा कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स पर ध्यान दिया गया जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. सो इससे क्या हुआ? इससे जो हमारी इंडिया में अब हमारे लोगों के लिए जो क्रॉप्स थी वो बाहर ज़्यादा हम लोग कहाँ से मंगाने लग गए? इंपोर्ट करने लग गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो रही थी? वो हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी. नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री की. हाउ इट अफेक्ट्स द इंडस्ट्री. जो रिफॉर्म्स बनाए गए थे वो इंडस्ट्री पे कैसे अफेक्ट किया? इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. वी कैन डेवलप द इंडस्ट्री. चीपर इंपोर्ट्स इतने चीप आ रहे थे. जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसके लिए बहुत ही टफ कंपटीशन था. वो बहुत कम रेटों पे आ रहे थे, क्वालिटी उनकी अच्छी थी. तो इससे क्या हो रहा था? जो कंज्यूमर था दे shifted from domestic market to the import market. The tough competition obvious है when the domestic market और domestic industry के लिए ये बहुत ही एक tough competition था. नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट. इवन द डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज. मीन्स जो PSUs का टारगेट था कि इस साल हम इतना करेंगे, इस साल वो धीरे धीरे बढ़ता गया. रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसी. रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज मीन्स रिफॉर्म्स के अंडर हमें टैक्सेस जो थे वी हैव टू पुट इट द रिडक्शन, हमें उसे रिड्यूस करने पड़े. उससे क्या हुआ? जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था वो हमारा बहुत ही डिक्रीज हो गया. सो दिस इज़ अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, privatization and liberalization and how it affects on the Indian economy. And no doubt it has a positive impact, but positive impact के साथ साथ हमारे पास इसके negative impact भी है. So here we conclude the chapter and
hope you all are writing notes, making your notes, and do the exercise of this chapter 2. And today is my last lecture, because your summer vacation has been declared. That is from 15th April to 14th May. So we will meet soon on 15th May, hopefully in school, and if not, we will continue the lecture as we are going. And one more thing, you just do your assignments. As such, I have already given you the projects. Kindly complete your projects during this vacations, as well as I am also giving one assignment. एक असाइनमेंट दे रही हूँ जो सब बच्चों ने करना है. असाइनमेंट क्या होगा? इकोनॉमी ड्यूरिंग कोरोना और कोविड-19, द वर्ल्ड इकोनॉमी. आप वर्ल्ड इकोनॉमी पे लिख सकते हो कि किस तरह इकोनॉमी हमारी, बिकॉज आजकल न्यूज़ भी आ रही हैं. आप क्लिपिंग्स भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी यूज़ कर सकते हो. ये एक असाइनमेंट आप सभी ने तैयार करना है, जिसमें हमने ये लिखना है कि हमारी जो इकोनॉमी है, नॉट ओनली द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ द कोविड-19 अफेक्ट्स द इकोनॉमी, द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमी. एंड जितना हो सके तो आप लोग इसके मेजर्स भी हम लिख सकते हैं. हाउ टू बूस्ट आर इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19. आई गेस सभी को समझ आ गया होगा. एक असाइनमेंट बनाना है, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ द मेन प्रोजेक्ट. थर्डली, जो आपने इन समर वेकेशंस में करना है, ये जो 3 चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, दीज आर द 2 यूनिट्स. ओके, ये यूनिट्स हमने कर ली हैं. 1 यूनिट कर दी है. सेकेंड जो यूनिट है दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर द समर वेकेशन. वो है हमारे चैलेंजेस. वो हम करेंगे आफ्टर द समर वेकेशंस. तो पहला काम आपने करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है. सेकेंड, द असाइनमेंट ऑन द कोविड-19, how it affects Indian as well as the world economy and its measure, how we can overcome after the COVID-19. जितना हो सके आप इंटरनेट को छानो या क्या उपाय हो सकते हैं, so that we can boost our economy after COVID-19, right? 2 चीज़ें हो गई. थर्ड चीज़ ये है कि आपने अपने सारे नोट्स प्रिपेयर रखने हैं, एंड जितने भी क्वेश्चन ईयर्स हैं, चाहे वो 1 मार्क्स है, 3 मार्क्स है या 6 मार्क्स क्वेश्चन हैं, और NCERT के पीछे वाली एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चन ईयर्स हैं वो आपने करने हैं. प्लस एक बॉक्सेस दिए हुए हैं NCERT बुक्स में, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ आर गिवन. सो ट्राई टू डू द 5 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ दैट. होपफुली you all will do well and enjoy your summer vacation. Till then, bye.